My dear students, good afternoon. Myself मालम दिव्येश और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राइट, मतलब कि हमने देख लिया था अगले लेक्चर में कि रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो कैसे वर्क करते हैं। राइट, बस इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी है रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। समझ में आया? मतलब कि कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, वो इन चीज़ों के बगैर नहीं हो सकते। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। राइट, सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देन द पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेसिस, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम अब वन बाय वन ये सारा जो टॉपिक्स है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो एक चीज़, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पूरा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूँ जिसके अंदर से आपको ये पूरा जो टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो दिया गया है वो। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर पूरा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो टॉपिक है वो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो वो जो टॉपिक है वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये जो वीडियो है वो। ठीक है, Restriction enzymes are enzymes that recognize specific sequences within the DNA and cut the DNA at the restriction site. Thus, they are also called molecular scissors. Werner Arber, Hamilton Smith, and Daniel Nathans were awarded the Nobel Prize for Medicine in 1978 for discovering the restriction enzymes. Recombinant DNA technology owes its development to the discovery of restriction enzymes. Restriction enzymes were first discovered when it was found that some bacteria have a defense mechanism and are able to prevent the multiplication of invading viruses or bacteriophages. These bacteria selectively cut or restrict the foreign DNA but not the self-DNA. The enzymes which cleave the foreign DNA were named restriction enzymes. Self-DNA is modified, methylated by the host's modification enzyme, whereas the foreign DNA is unmethylated and so is cleaved by the restriction enzyme. Hundreds of restriction enzymes have been isolated and purified from different species of bacteria. Restriction enzymes belong to the group of enzymes called nucleases. Nucleases are enzymes that catalyze hydrolysis of the DNA. These may either be endonucleases or exonucleases. Endonucleases cut nucleotides within the DNA, whereas exonucleases removes nucleotides from the ends of DNA. Restriction enzymes are endonucleases. After studying how type 1 and 3 recognizes the site, let us check the different step that type 2 uses. The type 2 restriction enzymes recognize and bind to a specific DNA sequence which may be 4 to 8 base pairs long and cut the sugar phosphate backbone of both the strands that make up the DNA double helix, giving rise to fragments of specific sizes. Since type 2 restriction enzymes cut the DNA in a precise and reproducible manner, they are used for gene cloning. Type 2 restriction enzymes are used for gene cloning. That's interesting. Don't you think it should be covered in detail? Restriction site for the type 2 restriction enzyme have a twofold rotational symmetry. That is, it is palindromic.
It reads the same in both strands of DNA, read in 5' to 3' direction. Each restriction enzyme recognizes a particular restriction site, but different restriction enzymes recognize and cut the DNA at different restriction sites. However, some type 2 restriction enzymes recognize the same restriction site. Such enzymes are called isoschizomers. For instance, the restriction enzymes SST1 and SAC1 recognize the site GAG-CTC. Moving on the next series of restriction enzymes. These enzymes give rise to fragments with staggered or cohesive ends. Such fragments have single-stranded overhangs at both ends of each fragment. ECOR1 recognizes the site GAA-TTC and cuts the DNA within the site between G and A on both the strands to give rise to two fragments with staggered ends. The single-strand overhangs can base pair with each other or with other DNA fragments having complementary ends. The restriction enzymes that generate fragments with cohesive ends are useful in gene cloning. Thus, it can be said that restriction enzymes are used for isolation and cloning of specific DNA fragments and for the construction of restriction maps. A restriction map is a So students, restriction enzyme, राइट, हम लोगों ने वीडियो तो देख लिया है, बट जो भी डिटेलिंग थोड़ी सी अभी बाकी है वो हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है कि 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे फॉर द आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। बट सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो था W. आर्बर इन 1963। उन्होंने क्या किया था कि ही हैज़ आइसोलेटेड 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। उन्होंने 2 एंजाइम्स जो थे वो आइसोलेट किए थे, राइट। जो एक एंजाइम था, दिस विल ऐड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, मतलब कि दो एंजाइम्स उन्होंने आइसोलेट किए थे। एक जो एंजाइम था वो क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए के अंदर, वाइल द अदर कट्स द डीएनए। और दूसरा जो एंजाइम था वो क्या करता था, तो कि वो कट करता था डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। इसलिए उसके बाद लेटर इट वाज नेम्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कि उसके बाद इसका एक अलग नाम दिया गया जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो एक ग्रुप है एंजाइम का जो जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियसिस, उसकी क्लास से ये बिलोंग करता है, राइट। अब द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HindII, मतलब कि सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई हुआ है वो है HindII। क्लियर, आगे देखते हैं HindII के बारे में। तो एस यू कैन सी हियर क्या है, तो कि इट वाज फाउंड दैट HindII ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजेशन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। आपको ड्रॉ करके नेक्स्ट जो है वो है क्लोनिंग साइट्स, राइट। तो क्लोनिंग साइट्स इन द सेंस कि कोई भी ऐसी प्लाज्मिड के अंदर जो, जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, कि अगर कोई भी एक प्लाज्मिड है, चलो ये एक प्लाज्मिड है, राइट। आपको ये आपका ये डिजायर्ड डीएनए है, उसमें से ये जो इतना फ्रेगमेंट है ना, उसको आपको इस प्लाज्मिड के साथ स्टिक करना है या फिर अटैच करना है, राइट। तो क्लोनिंग साइट इन द सेंस कोई भी पीस ऑफ एलियन डीएनए जिसको आप प्लाज्मिड के साथ अटैच करते हो, उस साइट को हम बोलेंगे क्लोनिंग साइट। समझ में आया, मतलब कि अगर यहाँ पर अगर ये साइट प्रेजेंट होगी तो उससे हम बोलेंगे क्लोनिंग साइट, राइट। मतलब कि ये जो डीएनए का पीस होगा वो यहाँ पर अटैच्ड
होगा इस प्लाज्मिड में, राइट। तो उसे हम बोलेंगे क्लोनिंग साइट। यहाँ पर देखते हैं, चलो, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव अ वेरी फ्यू और सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट। मतलब कि जो रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, राइट, फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट हो गई, अगर सोच लो कि ये एक रिकॉग्नाइजेशन साइट है, फिर ये एक रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहाँ पर भी रिकॉग्नाइजेशन साइट है और यहाँ पर भी, तो आपके पास जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है वो तो एक ही है, राइट। तो एक ही जगह पर जाकर वो डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा वो स्टिक हो सकता है। बाकी जितने भी साइट्स जो प्रेजेंट है वहाँ पर कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट अटैच नहीं होगा। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो भी जीन क्लोनिंग की जो प्रोसेस है ना वो बीच में ही स्टॉप हो जाएगी, राइट। इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। देन आगे देखते हैं, तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इन द सेंस जो भी हमारा एलियन डीएनए था उससे को हमने प्लाज्मिड के साथ जो अटैच करवाया है, राइट, वो हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे लाइगेशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग जैसे पढ़ चुके हो कि कोई भी एक प्लाज्मिड होता है ना, उसके पास दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स प्रेजेंट होती है, या फिर एंटीबायोटिक की साइट्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपके पास क्या है, एलियन डीएनए है जिसको आपने इंसर्ट किया है इनटू द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन BAM-H1। जैसे कि हम लोग प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, PBR 332, ये PBR 322 का स्ट्रक्चर है, सॉरी, राइट। तो ये जो पूरी साइट है वो रिप्रेजेंट करेगी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को, ये जो पूरी साइट है वो रिप्रेजेंट करेगी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को, ठीक है। और ये है आपका डिजायर्ड डीएनए। आपने क्या बोला है यहाँ पर कि जो भी आपका एलियन डीएनए होगा उसको आपने किसके साथ अटैच करवाया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन BAM-H1 के साथ। मतलब कि H1 का यूज़ करके आपने टेट्रासाइक्लिन के साथ उसे अटैच कर दिया। मतलब कि ये जो डीएनए है वो न्यू डीएनए है। समझ में आया। देन क्या होगा कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरिजन डीएनए। अब ये जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट था, राइट, वहाँ पर जितने भी जीन्स प्रेजेंट थे वो सब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थे। मतलब कि वो टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस में ग्रो नहीं हो पाते थे। बट आप लोगों ने क्या किया कि जो न्यू जो डीएनए एड किया है वो तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंट में इजीली ग्रो हो सकता है, ठीक है। फिर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विच ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब आपको करना क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से अलग करना है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप क्या करोगे कि ये जो भी प्लाज्मिड है ना, ये पूरा प्लाज्मिड उसके आप फ्रेगमेंट्स करने के बाद आप उसे किसी भी एम्फिसिलिन कंटेनिंग प्लेट, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कंटेनिंग प्लेट, उसके अंदर आप डाल दो। तो क्या होगा कि ये इसके अंदर ग्रो हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर ये कॉलोनीज ग्रो होगी, ये कॉलोनीज ग्रो हुए वो क्या होगी तो कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, राइट, मतलब कि वो एम्फिसिलिन के प्रेजेंट में ग्रो हो सकते हैं। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर जो भी कॉलोनीज ग्रो हुई है उससे आप ट्रांसफ़र करोगे दूसरी प्लेट जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, वहाँ पर कुछ ही कॉलोनीज ग्रो होंगी। और वो जो कॉलोनीज ग्रो होगी वो कौन सी होगी, तो जो हमने यहाँ पर जो न्यू एलियन डीएनए का जो ऐड किया था वो कॉलोनीज यहाँ पर ग्रो होंगी, दूसरी कोई भी नहीं ग्रो होगी। तो देखते हैं कैसे होता है वो। देखो यहाँ पर, द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम
आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। समझ में आया, पहले एम्फिसिलिन में ट्रांसफर किया, उसके बाद हमने टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर किया। तो क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल ग्रो इन एम्फिसिलिन। अब जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होगा वो किस में ग्रो होगा, एम्फिसिलिन में भी होगा, ठीक है, बट वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं होगा क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट जो भी नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा डीएनए वो दोनों में ग्रो होगा, मतलब कि एम्फिसिलिन में भी ग्रो होगा और वो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो होगा। समझ में आया, इसकी वजह से आप दोनों को अलग कर सकते हो, मतलब कि जो वेक्टर्स जो हैं या फिर जो भी डीएनए है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है उसको अलग कर सकते हो और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है उसको भी आप अलग कर सकते हो, वो भी इजीली, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर देख सकते हो आप कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कंबर्शन सब्सटेंस या फिर कंबर्शन प्रोसीड्यूर। मतलब क्या कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि पहले तो आप क्या करते हो कि रिकॉम्बिनेशन करवाते हो, फिर रिकॉम्बिनेशन को किसी भी एंटीबायोटिक के साथ आप ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आप क्या करते हो कि उसको फिर से किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करवाते हो। मतलब कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना वो पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो उसकी वजह से अब आपको अगर सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करने हैं तो आप अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को अलग कर सकते हो बाय यूजिंग द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मीन्स क्या, तो कि आप कोई भी एक आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए लो, राइट, आपका कोई भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर डीएनए है आपके पास और ये आपका एक एंजाइम है जो है बीटा गैलेक्टोसिडेस, ये एक एंजाइम है। चलो आपको क्या करना है, आर डीएनए को इसके साथ मिक्स करना है, क्लियर। और ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेस है ना वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए। समझ में आया यहाँ तक। अब क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब कि आपने आर डीएनए को बीटा गैलेक्टोसिडेस के साथ अटैच किया तो क्या होगा कि आर डीएनए जो बीटा गैलेक्टोसिडेस के पास जो भी एंजाइम एक्टिविटी थी उसको वो इनएक्टिव कर देगा और इस टाइप के इनएक्टिवेशन को हम बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आर डीएनए इज इंसर्टेड विथ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वो क्या क्रिएट करेगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्रिएट करेगा। देन क्या होगा कि जो भी प्लाज्मिड है जिसमें वेक्टर एंटर हो चुका है, समझ में आया, मतलब कि जो भी ऐसे प्लाज्मिड जिसके अंदर वेक्टर या फिर आर डीएनए जो वो एंटर हो चुका है तो उसके बाद जो भी आपको कॉलोनीज जो दिखेंगी ना वो कैसी होगी, विदाउट एनी कलर। समझ में आया। बट कोई भी ऐसे प्लाज्मिड जहाँ पर कोई भी वेक्टर एंटर नहीं हो पाया है उस टाइप के सब्सटेंस क्या करेंगे तो ब्लू कलर फॉर्मेशन करेंगे। देखो आप, इफ प्लाज्मिड डू नॉट हैव एनी इंसर्जन मतलब कि वेक्टर इंसर्जन, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनीज। तो क्या होगा कि जो भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होगा वो ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा। अब प्रेजेंस ऑफ इंसर्जन मतलब कि इंसर्जन हो चुका है तो रिजल्ट्स इनटू द इंसर्जन इनएक्टिवेशन, मतलब क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम के पास जो भी एक्टिविटी थी ब्लू कलर फॉर्मेशन की वो खो देगा। तो क्या होगा कि जो भी कॉलोनीज मिलेगी वो कैसी होगी, नॉन प्रोड्यूस एनी कलर, मतलब किसी भी तरह की वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट। उसके बाद जो है वो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप लोग ये चीज़ तो पढ़ ही चुके हो कि जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस है वो वन टाइप ऑफ पैथोजन है फॉर द टोबैको प्लांट। वो क्या करता है कि टोबैको प्लांट में वो ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है
क्या बोला गया कि जो भी एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस है वो क्या कर सकते हैं, तो कि जो भी प्लांट के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना उसको भी वो ट्यूमर सेल्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो रिट्रोवायरस जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल एनिमल सेल्स है उसको वो कैंसरस सेल्स में बना सकता है, मतलब कि ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आया? तो अब आप क्या कर सकते हो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि आप ये जो भी एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस जो एक वेक्टर है उसे आप ऐसा वेक्टर यूज़ कर सकते हो। मतलब करना क्या होगा आपको कि उसके अंदर जो भी पैथोजेनिक जीन्स थे आपने उसको रिमूव कर दिया, पैथोजेनिक जीन्स रिमूव कर दिए, आपको जो भी रिक्वायर्ड जीन्स थे आपने उसके अंदर वो एंटर कर दिया, राइट। मतलब कि देखो ये पूरा डीएनए है, ये जीन्स आपको नहीं चाहिए, ये जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्यूमर, राइट। और ये जो जीन है वो आपके लिए अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, ये जीन को यहाँ से रिमूव करके दूसरे जीन यहाँ पर ऐड कर दोगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा, और ये जो जीन मतलब कि दूसरा जो नया आरडीएनए जो फॉर्म होगा उसे आप किसी भी प्लांट के अंदर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ दी गई है। The tumor of agrobacterium टूमीफेसिस are now been modified into a cloning vector, right, which is no more pathogenic but can be used to deliver genes of our interest into the variety of plant। मतलब कि आपके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपको अगर उसको किसी भी प्लांट के अंदर आपको एंटर करना है तो आप एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस को ऐसे वेक्टर यूज़ कर सकते हो। और वैसे ही एनिमल्स के अंदर रिट्रोवायरस, समझ में आया? रिट्रोवायरस में अंदर भी क्या होगा कि जो भी अनडिजायरेबल जीन्स थे आपने उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर आप लोगों ने डिजायरेबल जो जीन्स थे उसको ऐड कर दिया, और फिर आप डायरेक्टली किसी भी एनिमल सेल्स के अंदर उसको ऐड मतलब कि एंटर करवा सकते हो, राइट। तो इसके अंदर अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। पहले तो आप लोगों को कॉम्पिटेंट का मीनिंग मैं समझा देता हूँ। कॉम्पिटेंट इन द सेंस कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास उसके मतलब कि ये एक बैक्टीरिया है, उसका जेनेटिक मटेरियल है और उसके आजू बाजू में भी यहाँ पर एनवायरनमेंट में डीएनए घूम रहे हैं। क्लियर? तो किसी भी बैक्टीरिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी कि वो उसके आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें से इस डीएनए को खुद के अंदर वो एंटर कर सके, मतलब कि खींच सके, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्पिटेंस। समझ में आया? कॉम्पिटेंस मीन्स क्या है? द एबिलिटी टू टेक अप द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज कॉम्पिटेंस, राइट। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक इन द सेंस वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, राइट। ये आपको पता है। मतलब कि डीएनए कैसा है, तो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि वाटर के साथ वो अट्रैक्ट होता है। इट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और जो डीएनए होता है ना वो डीएनए जो भी बैक्टीरिया के सेल वॉल होती है वो वहाँ से पास हो सकता है। क्लियर? अब आगे आपको दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया है जिसको आपको फोर्सफुली उसको बोलना है कि आपके सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसको आपको अंदर लेना है, राइट। मतलब कि ये एक बैक्टीरिया है, ये आजू बाजू में इसका प्लाज्मिड घूम रहा है, कोई भी दूसरा प्लाज्मिड। अब आपको क्या करना है कि इस बैक्टीरिया को ऐसा बनाना है ये आजू बाजू में जो घूम रहा प्लाज्मिड है वो भी ये अंदर ले ले, खींच ले, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्पिटेंस। देखो यहाँ पर, द ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंस टू टेक अप द डीएनए। समझ में? मतलब कि कॉम्पिटेंस बनाना होगा। तो कॉम्पिटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो एक सॉल्यूशन लेते हैं, चलो ये सॉल्यूशन है कैल्शियम का, सॉल्यूशन है कैल्शियम का। आप क्या करोगे, उसके अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया सेल्स हैं उसको आप इसके अंदर ऐड कर दो,
अब क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ना, वो जो भी बैक्टीरिया की सेल सरफेस होती है उसे रप्चर करके उसके ऊपर पोर्स क्रिएट करेगी, मतलब कि छोटे छोटे पोर्स क्रिएट करेगी। ये पोर्स है, राइट। अब जैसे कि आपको पता है कैल्शियम ने क्या किया, बैक्टीरियल सेल के ऊपर पोर्स क्रिएट किए। अब क्या होगा कि एनवायरनमेंट में जब भी कोई भी प्लाज्मिड इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये इस पोर्स थ्रू एंटर हो सकता है। समझ में आया? एक बार वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गया, मतलब कि ये बैक्टीरिया के खुद का डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए, अब क्या होगा, ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और एक सिंगल डीएनए फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया? मतलब इस टाइप की प्रोसेस हो सकती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दी गई है, बट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो है 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द आइस। आइस के अंदर आपको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट इज द माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या होगा कि आप कोई भी एक ऐसा इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो कि इंजेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपना रिक्वायर्ड जो डीएनए है ना उसको फिलअप किया है, राइट। उसको डायरेक्टली किसी भी एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर आप उसे एंटर कर सकते हो। क्लियर? तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल का डीएनए प्रेजेंट होगा। वो जो भी प्लाज्मिड होगा वो एनिमल सेल के डीएनए के साथ मिक्सअप हो जाएगा एंड स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। वैसे ही जीन गन जो थेरेपी है ना, वो मेनली प्लांट्स के लिए यूज होती है। प्लांट्स के अंदर क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी रिक्वायर्ड डीएनए है उसे आप किसी भी गोल्ड या फिर टंगस्टन के बॉल्स होते हैं उसके अंदर आप फिल कर दो, उसके अंदर बीच में डाल दो। फिर आपको क्या करना है कि ये जो जीन गन होती है ना, जीन गन से आपको प्लांट सेल के बीचों बीच उसे एंटर कर देना है। मतलब कि ये जो भी टंगस्टन या फिर गोल्ड के जो पार्टिकल्स थे जिसके बीच में डीएनए प्रेजेंट था उसको आपको बॉम्बार्ड करना है, मतलब कि प्लांट सेल के अंदर एंटर करना है। क्लियर? तो इस टाइप की पूरी प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो अभी के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्यस, वेलकम यू ऑल इन द बायोलॉजी सेक्शन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हाउ डज द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। अलग अलग टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है, बट अब जो पूरी प्रोसेस होगी कंबाइन प्रोसेस, राइट, वो एक साथ पूरी प्रोसेस हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि कैसे पूरी प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन की होती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि जिसकी हेल्प थ्रू हम रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं डीएनए का, राइट। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं और वो स्टेप्स डिटेल में हम देखेंगे कि उन स्टेप्स के अंदर क्या होता है आखिर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो आपको आइसोलेट करना होगा आपका डिजायर्ड डीएनए। एक बार आप अपना डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट कर लो, उसके बाद फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ठीक है। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देन आपको क्या करना है, आपका डिजायर्ड डीएनए मिल गया, उसके बाद आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरह का है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। उन दोनों को मिक्सअप कर दो तो बनता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। बाद में आप क्या करोगे, उस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को आप आइसोलेट करोगे, राइट। आइसोलेट करने के बाद, आइसोलेट करने के लिए आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड यूज़ करते हो।
देन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू अ वेक्टर। फिर आप क्या करोगे, वो जो डीएनए था आपका उसको आप अपने वेक्टर के साथ मिक्सअप करोगे, ठीक है। और वो जो वेक्टर फॉर्मेशन हुआ है उसको आप अब क्या करोगे, किसी भी होस्ट सेल के अंदर आप उसे ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको क्या मिलेगा, जब आप लाइगेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ मिक्सअप करोगे या फिर जोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें से आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको आप लोगों को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। देन कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज सेल, उसके बाद क्या करोगे, आपको अपना डिजायर्ड डीएनए मिल गया, राइट, होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। फिर आप क्या करोगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करोगे एंड अल्टीमेटली लास्ट में आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे आपके डिजायर्ड डीएनए को, राइट। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम, वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, जैसे कि हम लोगों को पता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज डीएनए और वन इज आरएनए। डीएनए एंड आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, बट अल्टीमेटली ये जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड, राइट। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे हम लोगों को पता है एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। These are the nucleic acid, right, and used for the formation of DNA and RNA। जैसे कि आप लोगों को पता है न्यूक्लिक एसिड 4 है, वन इज एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड अभी भी एक है यूरेसिल, राइट। तो मेनली क्या होता है कि आपको ये 4 जो होते हैं उनके बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलता है, मतलब ATGC, AT के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल था जो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अब आपको क्या करना है, आपको डीएनए एंड आरएनए तो मिल गया, मतलब कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल चाहिए था आपको वो मिल चुका है। अब आप फर्दर क्या करोगे, उस डीएनए को आप कट करोगे, ठीक है। आपको डिजायर्ड डीएनए को आपको कट करना है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, हमको पता है एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, तो के स्पेसिफिक साइट को पहले वो देखेंगे, पूरी जो भी डीएनए की सीक्वेंस होगी उसको पहले वो रीड करेंगे। जैसे कि ये डीएनए की सीक्वेंस है तो उसको पहले वो रीड, यहाँ पर अटैच होकर पूरी सीक्वेंस को रीड करेंगे। बाद में स्पेसिफिक साइट जो होगी जहाँ पर GAATTC या फिर GAATTC, ये जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा उसे आइडेंटिफाई करेंगे एक एंडोन्यूक्लियस, और एक्सोन्यूक्लियस आके क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, टू कट द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अनदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब कि आपको अगर प्योर डीएनए चाहिए तो जो भी सेल के अंदर दूसरे जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप डीएनए जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसी भी एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर, मतलब कि किसी भी एक सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो भी सेल होगा उसके अंदर डीएनए के अलावा वहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, तो कि आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है या फिर लिपिड्स हो सकते हैं। These are the different types of macromolecules which are present along with the DNA, मतलब कि डीएनए के साथ ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको प्योर डीएनए चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको आपको पहले तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, देखते हैं आगे। This can be achieved by treating the bacterial cells or plant cell or animal tissue with the enzymes such as lysozyme को किसके साथ करेंगे, lysozyme is the bacteria enzyme used for treating the bacterial cell।
मतलब कि कोई भी बैक्टीरियल सेल होगा, अगर उसके अंदर कोई भी डीएनए के अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, हमको उसका ब्रेकडाउन करना है, तो उसके लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे वो होगा लाइसोजाइम। ठीक है। देन सेल्यूलोज, अगर हमारे पास कोई भी प्लांट सेल है तो प्लांट सेल है, राइट, तो हमको जस्ट उसका डीएनए ही चाहिए, तो उसके अलावा जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर हमको उसको रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम, राइट। और फंगस होगा तो फंगस के लिए काइटिनियस एंजाइम। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम किसी भी एंजाइम का नाम लिखते हैं तो लास्ट में जो 3 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ASE। ठीक है, मेनली जो भी एंजाइम हम लिखते हैं उसमें लास्ट जो 3 लेटर्स होते हैं वो होते हैं ASE, इट विल डिनोट द एंजाइम, राइट। और अगर कोई भी RNA मॉलिक्यूल होगा, हमें उससे रिमूव करना है तो हम उसे ट्रीटमेंट देंगे विद द रिबोन्यूक्लियस एंजाइम, रिबोन्यूक्लियस। ठीक है। और अगर कोई भी प्रोटीन होगा तो हम प्रोटीएस एंजाइम का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि किसी भी सेल के अंदर डीएनए के अलावा जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हमें उसे रिमूव करना है तो हम उसे एंजाइम्स की ट्रीटमेंट देंगे, जिसकी वजह से हम उन सब मैक्रोमोलिक्यूल्स को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब एक बार क्या हो गया, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे हमने उन सब को रिमूव कर दिया, मतलब कि डिग्रेड कर दिया। अब बचा क्या होगा सेल के अंदर, जस्ट प्योर डीएनए। अब उस प्योर डीएनए को अगर आपको आइसोलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी विद द चिल्ड इथेनॉल। देखो यहाँ पर, other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol। मतलब कि वो जो भी बैक्टीरियल सेल्स होंगे, राइट, उसको आपको क्या करना होगा, अब किसी भी चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल मतलब कि वन टाइप ऑफ स्पिरिट या फिर अल्कोहल आप बोल सकते हो, राइट, उस सॉल्यूशन के अंदर आपको उस सब बैक्टीरियल सेल्स को आपको ऐड कर देना है। तो वो क्या करेगा कि जो भी डीएनए होगा, राइट, उसकी जो सेल वॉल होगी उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आपको आगे फर्दर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और लास्ट में आपको डीएनए, प्योर डीएनए आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्योर डीएनए आइडेंटिफाई या फिर प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको प्यूरिफाइड डीएनए मिल गया, उस प्यूरिफाइड डीएनए में से आपको जितना डीएनए चाहिए, मतलब कि आपका जो भी डिज़ायर्ड डीएनए है, अगर आपको उसको प्यूरिफाई करना है तो आप क्या करोगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। आपको उस डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स थे उसको कट कर दिया और उस डीएनए फ्रेगमेंट्स के सॉल्यूशन को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम ट्रीटमेंट देखेंगे जो हमने अगले लेक्चर में देख लिया है, राइट। और लास्ट में आपको अल्टीमेटली आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, उसको आप जेल में से रिमूव करके फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हो, राइट। तो यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, तो क्या है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। देखो, सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन मीन्स क्या, एम्प्लीफिकेशन इन द सेंस जो भी हमारे पास डीएनए उसके नंबर ऑफ कॉपीज बनाना, एम्प्लीफाई करना, बढ़ाना, जो भी कॉपी नंबर से उसको बढ़ाना, उसे हम बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एम्प्लीफाई करेंगे, राइट। तो उसके लिए जो मेथड यूज होती है वो है पीसीआर। पीसीआर इन द सेंस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और वो किसने इन्वेंट की थी, तो कार्ल मुलिस इन 1985, राइट। कार्ल मुलिस ने इन्वेंट की थी इन द 1985। इसका आप यूज कैसे कर सकते हो, फॉर द सिंथेसाइज ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो। इन विट्रो इन द सेंस लैब के अंदर, राइट।
आप स्पेसिफिक कंडीशंस दोगे इसको लैब के अंदर, जिसके हेल्प थ्रू आप नंबर ऑफ कॉपीज या फिर क्लोन्स ऑफ जीन आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पीसीआर की प्रोसेस अगर करनी है तो हमको बहुत कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ये पूरा मैं आपको एक वीडियो सेक्शन में बताऊंगा जो आगे है, बट उसके पहले हमको जो भी पीसीआर करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स है ना, हम वो पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो डीएनए टेम्पलेट। अब आपको ऐसा होगा कि डीएनए टेम्पलेट आखिर है क्या, राइट? तो कोई भी टारगेटेड डीएनए, मतलब कि कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ डीएनए जहाँ से आपको अपना डिजायर्ड डीएनए मिलने वाला है, उसे हम बोलेंगे डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर देखो, सोर्स दैट कंटेन वन और मोर टारगेट डीएनए, मतलब टारगेट डीएनए इन द सेंस आपको जो डीएनए चाहिए वो वाला डीएनए, डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स टू बी एम्पलीफाइड टेकन एज टेम्पलेट, उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। इन द सेंस आपको जो भी डिजायर्ड डीएनए है उसे हम टेम्पलेट बोलेंगे, राइट? उसके बाद आपको चाहिए होगा 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को पता है, एटीजीसी आर द न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? आपको न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगो इन द सेंस बहुत सारे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। अब टेम्पलेट डीएनए के सामने जो भी स्ट्रैंड बनती है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। देखो, मतलब कि ये डीएनए सीक्वेंस है, राइट? यहाँ पर GAATTC प्रेजेंट है, बट उसके सामने जो भी सीक्वेंस है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, इसे हम बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। उसके सामने जो फॉर्म होगी ना, मतलब कि जो फर्दर जो पॉलीमरेज की रिएक्शन होगी उसके बाद इसके सामने जो फॉर्म होगी उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट? तो उसके सामने जो फॉर्म होगा वो GAATTC, तो ये जो फॉर्म हुई है उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट? आगे देखते हैं, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपको चाहिए होगा टू एम्पलीफाई, राइट, विच इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अब ये जो भी डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज क्या मतलब कि जो भी प्राइमर्स हमने ऐड किए होंगे उसे एडिशन करने के लिए हमें एक पॉलीमरेज चाहिए होगा, जो है डीएनए पॉलीमरेज। तो हम लोग पीसीआर रिएक्शन के बारे में देख रहे थे, राइट? तो हम लोगों ने देखा था कि पीसीआर रिएक्शन के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द टेम्पलेट्स, राइट? द नेक्स्ट वन इज द प्राइमर्स एंड थर्ड वन इज द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से पूरी मैकेनिज्म जो है पीसीआर की वो होती है, राइट? तो सबसे पहला जो स्टेप है वहाँ पर आप देख सकते हो, स्टेप 1 डीनेचरिंग, राइट? जो डीनेचरिंग की जो प्रोसेस है, इन द सेंस उसके अंदर क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है उसको हम तोड़ेंगे, राइट? मतलब कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके हम सीक्वेंस को हम तोड़ के दोनों सीक्वेंस को अलग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो स्टेप 2, राइट? स्टेप 2 इज द एनेलिंग स्टेप। एनेलिंग स्टेप के अंदर क्या होगा कि हम डीएनए प्राइमर्स, देन डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होंगे? ATGC, राइट? एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। फिर क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज या फिर जो टेक पॉलीमरेज है वो क्या करेगा कि जो 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम जो एंड है वहाँ पर वो अटैच्ड हो जाएगा, और आप थर्ड स्टेप में देख सकते हो सिंथेसिस एट 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज द एनेलिंग स्टेप एंड थर्ड वन इज द एक्सटेंशन स्टेप, राइट? एक्सटेंशन स्टेप के अंदर क्या होगा? तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए,
राइट। वहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है वो एक के बाद एक अटैच्ड होते जा रहे हैं, और जो डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हमें बनानी थी, हमारे पास टेम्पलेट डीएनए की स्ट्रैंड प्रेजेंट थी, हमें कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बनानी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो चुकी है, राइट, और हमें न्यू डीएनए स्ट्रैंड मिल चुकी है। तो इस तरह से ये फिर से प्रोसेस होगी, मतलब कि ये जो प्रोसेस हमने देखी वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चालू रहेगी, राइट। तो हमें बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस ऐसे मिल जाएंगे। एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कि पीसीआर जो है उसका आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, मतलब कि आपको कोई भी पैथोजन को डिटेक्ट करना हो, राइट, जो आपके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, राइट, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन, डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन आप लोगों को पता होगा, अगर आपकी डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो जाता है, राइट, तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी म्यूटेशन क्या है। अगर ये आपकी एक डीएनए की सीक्वेंस है, राइट, यहाँ पर GAATTC प्रेजेंट है, यहाँ पर C, T के सामने क्या आएगा, ऑलवेज A के सामने क्या आएगा, T आएगा, राइट, बट यहाँ पर क्या होगा, A के सामने आ जाएगा U, मतलब ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ म्यूटेशन, राइट। मतलब कि जो भी पेयरिंग ऑफ म्यूटेशन मतलब कि न्यूक्लियोटाइड की जो पेयर होते हैं ना, A ऑलवेज विथ T एंड G ऑलवेज विथ C, बट यहाँ पर क्या हुआ, T के जगह पर U आ गया, ठीक है। तो उस टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जो एडिशन हो गए उसे हम बोलेंगे म्यूटेशन, राइट। मतलब कि आपके डीएनए के अंदर अगर किसी भी तरह का म्यूटेशन हो चुका है, राइट, जो मेनली आपको होता है थ्रू द अल्ट्रावायोलेट रेस, राइट, या फिर इंफ्रारेड रेस की वजह से आपको वो होता है, तो उसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। देन प्री नेचुरल डायग्नोसिस, मतलब कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ हुई है, आपको पहले से ही पता है कि मुझे ये डिजीज़ होने वाली है, राइट, मतलब कि आपको जो भी सिम्टम्स दिखते हैं उसके ऊपर से आप उसे डायग्नोसिस कर सकते हो, पहले ही डायग्नोसिस कर सकते हो, ताकि जब भी वो आप प्राइमरी स्टेज में हो तो आप उसे क्योर कर पाओ, राइट। एंड लास्ट वन इज द जीन थेरेपी। ये जो जीन थेरेपी है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि जीन थेरेपी आखिर है क्या, राइट। आगे बढ़ते हैं। So next one is the insertion of recombinant DNA into the host. Insertion in the sense आपको अब अपना recombinant DNA मिल चुका है, आपको अब करना क्या है, उस recombinant DNA को आपको किसी भी होस्ट के अंदर उसे एम्पलीफाई करना है, मतलब कि अंदर डालना है उसे, राइट। तो हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी बैक्टीरिया होते हैं, राइट, उस बैक्टीरिया के अंदर आपको फोर्सफुली अगर किसी भी प्लाज्मिड को अगर एंटर करवाना हो तो आप उस सेल को कॉम्पिटेंट सेल बनाते थे। कॉम्पिटेंस इन द सेंस ऐसे बैक्टीरियम जो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से प्लाज्मिड को इंटेक कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने मेथड यूज़ की थी जो थी कैल्शियम ट्रीटमेंट। आप क्या करते थे, मतलब कि कोई भी जो बैक्टीरियम होता है उसको कैल्शियम की ट्रीटमेंट देते थे, जिसकी वजह से वो जो सेल होते थे उसकी जो सरफेस जो होती थी, मतलब कि जो सेल वॉल होती थी उसके अंदर बहुत सारे पोर्स हो जाते थे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते थे कॉम्पिटेंस। देन क्या होता था कि जब भी वो जो पूरा बैक्टीरिया होता है या फिर बैक्टीरियम जो होता है, जब वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो उस पोर्स थ्रू जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्लाज्मिड प्रेजेंट होंगे वो उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। देखो जैसे कि ये एक बैक्टीरियम है, हमने इसको कैल्शियम की ट्रीटमेंट दी है, तो क्या हुआ होगा, इसके जो भी सेल वॉल होगी वहाँ पर बहुत सारे पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये है बैक्टीरियम का डीएनए। अब क्या होगा कि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में यहाँ पर भी दूसरे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है, तो इस पोर्स थ्रू ये जो प्लाज्मिड है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा, राइट। एंटर होने के बाद वो क्या करेगा कि ये पूरा बैक्टीरियम का डीएनए था और उसके साथ वो
प्लाज्मिड डीएनए मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शन, राइट। तो यहाँ पर यही था। देन नेक्स्ट वन इज द ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरिजन जीन प्रोडक्ट। मतलब कि आपको कोई भी फॉरिजन जीन प्रोडक्ट या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कैसे मिलता है और उसे कैसे आप एम्प्लीफाई कर सकते हो, मतलब कि आइसोलेट कैसे कर सकते हो उसके बारे में है, राइट। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब भी आप किसी भी एलियन डीएनए को वेक्टर के अंदर डालते हो या फिर ट्रांसफ़र करते हो तो क्या होता है कि उसमें से आपको एक वेक्टर मिलता है। मतलब कि आप जब भी प्लाज्मिड डीएनए जो होता है उसको एलियन डीएनए के साथ अगर मिक्स कर दो, राइट, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर, और उस वेक्टर को हम किसी भी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ें देखो, व्हेन वी इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, समझ में, मतलब कि जो क्लोन बना रहा है ना उसके अंदर अगर हम उसे एंटर करेंगे एंड ट्रांसफ़र इट इनटू बैक्टीरियम, फिर क्या करेंगे हम किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल सेल के अंदर हम उसे एंटर कर देंगे, तो अब क्या होगा कि जो भी एलियन डीएनए था वो इन सेल्स के अंदर खुद का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, राइट। मतलब कि जो भी प्लांट सेल थे, बैक्टीरियम सेल थे या फिर जो एनिमल सेल थे, उसके अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो खुद का मल्टीप्लिकेशन तो कर रहा है, बट उसके साथ साथ ये जो भी वेक्टर डीएनए था या फिर एलियन डीएनए था उसका भी वो मल्टीप्लिकेशन साथ में स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देन अब क्या होगा कि ये आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, मतलब कि आपको सेल्स तो मिल गए जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब आपको करना क्या है, उसके क्लोन्स बनाने हैं। क्लोन्स इन द सेंस नंबर ऑफ सेल्स, राइट, मीन्स कि उसकी जो भी नंबर्स थे उसको आपको बढ़ाना है, राइट। तो क्या होगा, आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन of interest and obtain the condition to induce the expression of the target protein, it will be produced on the large scale। मतलब कि एक बार आपको जीन मिल गए, अब आपको क्या करना है, उस जीन की नंबर्स ऑफ कॉपीज बनानी है, राइट। तो पहले तो आप क्या करोगे, उसे एक स्मॉल स्केल पर करोगे, मतलब कि लैब के अंदर करोगे पूरी प्रोसेस। लैब के अंदर प्रोसेस हो जाने के बाद आप क्या करोगे, उसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करोगे। ठीक है, इफ एनी प्रोटीन एन्कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन द हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। समझ में आया, उसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो आगे देखते हैं कि द सेल कल्चर इज ग्रोन इन द स्मॉल स्केल। पहले तो आप क्या करोगे, आपको जो भी सेल्स मिले हैं, मतलब कि आपके जो भी डिजायर्ड सेल्स हैं जिसके अंदर आपको जो जीन चाहिए था वो प्रेजेंट है, राइट। तो आप उसे क्या करोगे, पहले तो स्मॉल स्केल पर उसे ग्रो करोगे इन द लेबोरेटरी। देन उसके बाद क्या करोगे, ये जो भी कल्चर जो बना है उसका हम एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन्स एंड देन प्योरीफाइंग इट। उसके बाद हम दो प्रोसेस करेंगे। एक तो क्या होगी कि उसको हम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि वो जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे, फिर उसका हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, उसका लार्ज स्केल पर भी हम प्रोडक्शन करेंगे। मतलब कि पहले स्मॉल स्केल पर किया, अगर स्मॉल स्केल पर वो जो प्रोडक्शन था, राइट, वो अच्छा हुआ तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, या मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर भी हम बना सकते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ये जो तो बायोरिएक्टर आर यूज टू डेवलप अ डिजायर्ड प्रोडक्ट इनटू लार्ज स्केल। मतलब कि कोई भी बायोरिएक्टर का यूज़ किसके लिए होगा, तो कि कोई भी हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है अगर उसको हमको बढ़ाना है, मतलब कि उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ाना है, तो हम उसे बायोरिएक्टर थ्रू लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। बायोरिएक्टर्स आर अ वेसल, मतलब कि वेसल्स होती हैं इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल एंजाइम्स। समझ में आया, मतलब कि वो क्या होता है, एक बड़ी सी एक वेसल होती है जिसके अंदर हम अपना जो भी रॉ मटेरियल होगा उसे हम ऐड कर देंगे। फिर क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर बायोरिएक्टर के अंदर
वो जो भी बैक्टीरियम होगा वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। वो किसी के भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स के हो सकते हैं, प्लांट, एनिमल्स या फिर ह्यूमन सेल्स, किसी के भी वो सेल्स हो सकते हैं। और उसमें से हमको जो भी एंजाइम चाहिए हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि जो भी बायोरिएक्टर होगा उसके अंदर जो भी टेम्परेचर या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो कंडीशंस होते हैं ना, ऑप्टिकल कंडीशंस जो होती है वो हमें मेंटेन रखनी होगी। कंडीशंस के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो टेम्परेचर, राइट, देन पीएच, देन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इन द सेंस आपने जो भी रॉ मटेरियल ऐड किया है ना उसके बारे में, राइट, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन। सबस्ट्रेट इन द सेंस आपने किस तरह का सबस्ट्रेट ऐड किया है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो आपने किस तरह का ऐड किया है उसके ऊपर डिपेंड होगा। क्लियर? तो ये जो भी ऑप्टिमल कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। देन आगे देखते हैं। तो जो भी बायोरिएक्टर होता है वो कैसा होता है, इन द सिलेंड्रिकल शेप, मतलब कि वो मेनली जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। आप लोगों ने जैसे वीडियो के अंदर देखा है कि उसका जो भी शेप होता है वो किस तरह का होता है, तो मेनली हमने कैसा शेप देखा है कि ऐसा शेप था बायोरिएक्टर का। उसका जो बेस होता है वो भी हाफ सिलेंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है, ऐसा बेस होगा और यहाँ पर स्पार्जर प्रेजेंट होगा, राइट। ऑल्सो मिक्स द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, मतलब कि आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोरिएक्टर। मतलब कि जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ही बैक्टीरिया खुद का जो भी काम है वो कर पाएंगे इजीली और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिल सकती है। तो कुछ जो कंडीशंस है या फिर जो भी बायोरिएक्टर के अंदर जो सिस्टम पूरी प्रेजेंट है उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। तो क्या है बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट क्या होगा, एक तो एजिटेटर सिस्टम प्रेजेंट होगी, दैट एजिटेटर इन द सेंस जो कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते हैं, राइट, स्पार्जर्स, कंटिन्यूसली जो स्पार्जर्स मिक्स करते थे वो प्रेजेंट होगा। देन ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम, एक नीचे पाइप होगा जो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को अंदर, मतलब कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑक्सीजन को वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करेगा। देन फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम इन द सेंस जो भी फिन होती है ना, जैसे कि पाउडर में हमको पता है जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है कि ऊपर जो पाउडर का जो ऊपर फोक जम जाता है ना, फोम, उसके बारे में है। तो जब भी ये बायोरिएक्टर घूमेगा ना तो उसके ऊपर जो होता है फोम आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने सिस्टम लगाई है। देन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी है, राइट। और एक सैम्पलिंग पोर्ट्स होंगे। सैम्पलिंग पोर्ट्स इन द सेंस अगर आपको आपकी जो प्रोसेस चालू है उसको बीच में से ही आपको अगर मेजर करना है कि उस सैंपल के अंदर कितना ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हुआ है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो ये सैम्पलिंग पोर्ट्स थ्रू के उस प्रोसेस में बीच में से ही आप थोड़ा सा सैंपल लेके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से पूरी प्रोसेस होती है। अब जो लास्ट है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन द सेंस एक बार आपको अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गई, अब आपको करना क्या है, उसको मार्केट में बेचना है। बट आप डायरेक्टली तो उसे मार्केट में बेच नहीं सकते, राइट, मतलब कि आपको जो भी सैंपल मिला है उसे आप डायरेक्टली तो मार्केट में नहीं बेच सकते। आपको करना क्या होगा, उस सैंपल को पहले तो सेपरेट करना होगा या फिर एक्सट्रैक्ट करना होगा। मतलब कि जो भी बैक्टीरियल सेल्स थे उसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था उसे हमको वहाँ से रिमूव करना होगा, राइट। रिमूव करने के बाद उसे हमें प्यूरिफाई करना होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब कि हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट मिल चुका है, हमें उसे मार्केट में बेचना है। बट मार्केट में बेचने से पहले हमें उसका सेपरेशन करना होगा एंड उसका प्यूरिफिकेशन करना होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, राइट। और जब हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर बहुत सारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स क्या करेंगे, तो कि जो भी एनवायरनमेंट्स में कुछ भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वो उस सैंपल को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं, राइट। देन स्ट्रिक्ट
क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल जो होती है, राइट, वो भी आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन रखनी पड़ती है। लास्ट वन इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो भी डाउनस्ट्रीम की जो प्रोसेस है ना, वो जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होगी वैसे वैसे ये प्रोसेस भी चेंज होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो आई होप सो आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर होगा, मतलब कि समझ में आ चुका होगा, राइट। सो अभी के लिए थैंक यू।